Hello dear aspirants. So in today's concept talk, we are gonna again hit demand of UPSC, CSE and forest services through the game of plane and cone. So here you will not say at the end of this session कि we are not addressing the demand of the exam, not at all, cause in this concept talk we always try to be confined towards the demand of exam. We don't do the things by just like that. So when I say plane and cone, what does it gonna be? हाँ चले, be on the board please. I'm sorry. Again I will say I'll be bit slow, but end of these 20-25 minutes you will have something solid at your hand, that I can promise. चलिए, सो हमारे 3D एनालिटिकल ज्योमेट्री में एक बहुत ही फेवरेट कॉन्सेप्ट है. एक तो प्लेन सेक्शन ऑफ कॉनिकॉइड्स भी है. हम कोन एंड कोन लिख दिया. अच्छा आई एम सॉरी. सो दैट इज प्लेन सेक्शन एंड कोन. ठीक है. वी आर इंटरेस्टेड इन ज्योमेट्रिकली, ध्यान से देखिएगा, ज्योमेट्रिकली मीनिंग इज व्हाट हियर. ओके. वी आर इंटरेस्टेड इन व्हाट आर द PYQs or the questions in both of the exams which have been already asked and which can be asked further. ठीक है. सो प्रोबेबल क्वेश्चंस पर भी अपनी नजर रहेगी. अगेन हियर आई विल नॉट बी राइटिंग ऑल द मैथमेटिकल स्टेप्स जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पज एंड गोइंग टू द इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द वीडियो. नॉट एट ऑल. We will be very much confined. If you are interested in those details, you can go through the batch lectures. Here we are trying to be more concentrated on conceptual development, which is not just like that, which is required for solving questions. ठीक है. Moreover, generating lines क्या होते हैं? This we already know. If you don't know that, go through the game of line and surfaces, you will get that. चले, what you say कि if we talk about mutually perpendicular generators, और ये खुद में क्वेश्चंस हैं, कोई मजाक नहीं है, कोई एक एक दो दो लाइंस नहीं है, ये खुद में यक्ष प्रश्न हैं आपके यूपीएससी में. ठीक है. तो अब हम यहां पर ये देखने जाएंगे कि कैसे इस कॉन्सेप्ट को, कैसे इस ब्लॉक को समझना है. खुद को धराशायी नहीं होने देना है, कॉन्सेप्ट को धराशायी करना है. ठीक है. चलो देखिए प्यारे बच्चों, if you have been gone through the classes or lectures or notes or books, you would have observed कि whenever they ask you intersection of plane and cone, ध्यान से देखना, intersection of plane and cone, whenever they ask you about this, the questions are always they take the cone, ध्यान से देखिएगा, cone with vertex at origin. आज के बाद नहीं किया होगा तो आज ऑब्जर्व कर लेना जाके, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली फाइल भी देख लेना कि ऐसा क्यों हो रहा था. प्लेन पासिंग थ्रू origin. ठीक है. So until unless it is not stated कि we have to talk in general, we will consider कि here we are confined to
plane passing through origin and cone with vertex at origin. Did you get my point? And as far as our CSC syllabus or forest services syllabus is concerned, there they are confined only at this category. Then without loss of generality, it can be extended to a general plane and a general cone. Note it. चलिए प्यारे बच्चों, इफ यू आर आस्किंग अबाउट कि सर कोन विथ अ वर्टेक्स एट ओरिजिन को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, ये भी जरा बताइए. सो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं. ए होमोजीनियस इक्वेशन, क्या कह रहा हूं, ए होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, और होमोजीनियस ऑफ सेकेंड डिग्री को कैसे लिखा जाता है प्यारे बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f बाई जेड प्लस 2z जेड एक्स प्लस 2hx बाई इक्वल्स टू 0. सो जब भी आपको कोई इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखा है, that always represents a cone with vertex at origin. So persons who are interested in this more explanation, they can go through the other concept, talk about cone. They will get surely the crystal clear picture out. Fair? चलो. Persons who are attending only this lecture, for them I would like to say, master कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा, ठीक है. So if you are talking about equation of a plane passing through origin, then that can be written like ux plus vy plus wz equals to 0. क्लियर है प्यारे बच्चों? कोई डाउट है यहां तक तो चिल्लाइए. रत्ती भर भी डाउट है तो चिल्लाइए. नहीं है. सो लेट्स गिव दिस एज इक्वेशन 1, लेट्स गिव दिस एज इक्वेशन 2. देखिए ध्यान से, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि हमारे जो जोन में है, हमारे जो एग्जाम का रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमें डिस्कस करना है प्लेन एंड कोन विद द ओरिजिन. ओरिजिन मीन्स .000. Fair? तो हाउ टू टैकल दिस, हाउ टू टॉक अबाउट दिस, ध्यान से देखते रहना. अब देखेंगे, प्लीज बी ऑन द बोर्ड एवरीवन. हम क्या करते हैं, लेट्स कंसीडर अ लाइन passing through the point, let's consider the line passing through the point 0, 0, 0 and with direction cosines as lmn. So उसका इक्वेशन क्या होगा प्यारे बच्चों, x minus 0 upon l equals y minus 0 upon m equals z minus 0 upon n. ठीक है. Moreover, you can write it as x upon l equals y upon m equals z upon n. Persons who know, who have watched that concept talk, game of line and surfaces या game of lines, वहाँ पर they know कि to take a point on this line. So a point x equals to LR, y equals to MR, z equals to NR is on above line. Fair or not? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए. So let's give this as equation number 3. आराम से मूव करेंगे क्योंकि यहाँ पर आपके सिलेबस को टैकल किया जा रहा है थ्रू द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जहाँ आपको ज़बरदस्ती चीज़ें रटवा दी जाती हैं.
ठीक है, होता है या नहीं? चलिए अब देखिए, और बहुत मजा आने वाला है इसमें, बहुत। बी ऑन द बोर्ड प्लीज। इफ दिस पॉइंट लाइज ऑन 1, मैं क्या कह रहा हूं, जो प्लेन है वो सरफेस को मान लो कट कर रहा है, और वो जो पॉइंट आपको मिला है वो ये है। इफ दिस पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस 1, तो ऑन सेटिस्फाइंग क्या मिल जाएगा अपने को, बताइए जरा। ए एल स्क्वायर आर स्क्वायर, बी एम स्क्वायर आर स्क्वायर, सी एन स्क्वायर आर स्क्वायर, 2f एम एन आर स्क्वायर, 2g एन एल आर स्क्वायर, 2h एक्स बाई मीन्स एन एल कहाँ से आ गया, एम एन हो गया, एम एन तो एन एल, एल एम आर स्क्वायर, दैट गोज टू 0, right or not? So what happens from here, if you observe my dear fellows, we have, अपने पास है ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर प्लस एफ एम एन प्लस जी एन एल प्लस एच एल एम. Outside, if you take as r square common, so 2 obviously will be here. If you take r square as common, this goes to 0. Since we have taken a point at distance r, so let's say if you don't take r as 0, then what we must have, al square plus bm square plus cn square plus 2fmn plus 2gnl plus 2hlm equals to 0. Let's say we give this equation as 4. कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अब आप देखिए, लेट मी चेंज द कलर, सॉरी, आई एम सॉरी। देखना, when you talk about DCs and DRS वाला कॉन्सेप्ट टॉक, ठीक है, what? DCs and DRS वाला कॉन्सेप्ट टॉक, in that we had, क्या था? Whenever you have a linear equation in LMN, so this was, देखिए पॉइंट ने इसको भी तो सेटिस्फाई किया, on satisfying you have UL plus VM plus WN equals to 0, और उसको सेटिस्फाई कराने से ये इक्वेशन. सो अल्टीमेटली लेट्स से इसको बोल देते हैं 4, इसको बोल रहे हैं 5, ठीक है. सो दिस इज 4 एंड दिस इज AL स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर प्लस 2GNL प्लस 2HLM equals to 0, and that is the equation 5. और अब अपने को आने जा रहा है बेहतरीन वाला आनंद. क्या आने जा रहा है कि भैया ये जो प्लेन है ये कोन को कट करेगा, उसके लिए आपको गौर करना पड़ेगा इन दोनों के इंटरप्रिटेशंस पर. किस पर? दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन LMN, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन LMN. On solving these two equations, we will get two sets. Number one is L1 M1 N1 and other is L2 M2 N2. So एक लाइन यहां से मिला, एक लाइन यहां से मिली. So क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? Plane passing through origin, cone having the vertex at origin, then this प्लेन, क्या बोलेंगे? प्लेन इंटरसेक्ट्स कोन इन टू लाइंस. अब ध्यान से देखना, इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ जनरेटर्स, देन प्लीज गो थ्रू द
कोन वाला कॉन्सेप्ट टॉक में जनरेटर्स का मतलब होता है सिंस वी हैव टेकन दिस पॉइंट ऑन दिस पॉइंट ऑन दिस सरफेस मीन्स दिस लाइन लाइज कंप्लीटली ऑन दीज टू सरफेसेस। क्या बोला है? ये हमने सेटिस्फाई क्यों कराया? हमने लेकर लिया है लाइन लाइज कंप्लीटली ऑन 2 and 1। सो ये जो हमें लाइंस मिलेंगे, तो ये जो लाइंस होंगे वो कहलाएंगे जनरेटिंग लाइंस। सो थ्रू द डेफिनेशन, इफ यू आर नॉट क्लियर, यू मस्ट गो थ्रू दैट एज वेल। सो द फर्स्ट पिक्चर इज crystal clear in front of us कि a plane will intersect the cone in generating lines. Now these lines may be coinciding, may be imaginary, may be real. That will depend on solution of these two system of equations. System of two equations, I'm sorry. चमका या नहीं? आप ये बताइए कि ये पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है या नहीं। आराम से देख लीजिए आप लोग इसको, कोई तनाव होगा तो कहिए। और डॉट्स को कनेक्ट करना देखिए। क्या बोला मैंने? डॉट्स। कहां से स्टार्ट किया था कि डियर फेलोज, इफ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द इंटरसेक्शन, be on the board please, I'm sorry, if we are interested in finding the intersection of plane and cone, so for our UPSC we are confined towards only this special category where cone is with vertex at origin, plane is passing through origin। ठीक है, तो हमने प्लेन का जनरल इक्वेशन लिखा, कोन विद वर्टेक्स एट ओरिजिन का इक्वेशन लिखा। फिर चूंकि मुझे इंटरसेक्शन चाहिए, तो मान लो जिस पॉइंट पर कट कर रहा है उस पॉइंट के थ्रू मैंने क्या किया है, जिसमें कट कर रहा है, अब वो लाइन मिलेगा, पॉइंट मिलेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। सो आई हैव टेकन अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। डिड यू गेट द पॉइंट? So I have taken the line passing through origin so that कि इसके इस लाइन पर whatever points are there. So in general we take arbitrary point on the line like this. So if this point lies on the surface 1, lies on the surface 2, and this is arbitrary point here, means each point on this line 3 lies on surface 1 and 2, so line 3 may be treated as the generating line for that. Say yes or no. इतनी बात क्लियर है या नहीं? Since the line lies completely on the surface, because our this interpretation is coming from here only. आराम से, मैं जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं हूं, ठीक है। सो हमने क्या किया कि अगर ये लाइन कंप्लीटली दोनों सरफेसेस पर पड़ रही है, इसका मतलब जब प्लेन और कोन का इंटरसेक्शन हो रहा है तो हमें लाइन मिल रही है। एक लाइन या एक से ज्यादा लाइन, वो तो देखने वाली बात होगी, मतलब फर्दर इंटरप्रिटेशन। सो व्हाट वी हैव थॉट कि लेट इफ दिस लाइन कंप्लीटली लाइज ऑन दिस, देन दिस पॉइंट मस्ट सेटिस्फाई मैथमेटिकली। If this is happening, then this will happen. Getting my point? If this is happening, then we have already solved this type of problem, and UPSC asks questions regularly on such problems, केवल DCs और DRS फाइंड करने के लिए ही। तो फिर इनके थ्रू हमें पता चला कि मुझे दो सेट ऑफ वैल्यूज मिलेगा, L1 M1 N1, L2 M2 N2। अब तो यहां से जो L1 M1 N1 मिला है, L2 M2 N2 मिला है, सो अगर मैं इस इक्वेशन में यूज करूंगा तो पहली जनरेटिंग लाइन क्या दिखाई देगी? क्योंकि हम इफ लेकर चले थे ना, अदर जनरेटिंग लाइन क्या दिखाई देगी? एकदम विश्वास दिलाइए, बिना किसी लाग लपेट के कहिए प्लीज।
कॉन्सेप्ट डिकोडेड और नॉट? conceptually decoded or not? अब इसके लिए आपने कितना समय गंवाया था ये तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं अभी मेरे अंदर और भूख बाकी है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट टॉक में 2 क्वेश्चंस तो लेकर निकलें आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, ये मेरी कोशिश रहती है। ठीक है, तो 2 टाइप के क्वेश्चन तो यहीं मिल गए आपको झूठ मूठ के। कई बार जनरेटिंग लाइन के डीसीज पूछ देगा, कई बार जनरेटिंग लाइंस पूछ देगा। सो व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इज, देखिए ध्यान से, प्लेन इंटरसेक्टिंग कोन in 2 mutually perpendicular generators. बहुत इंटरेस्टिंग है, विश्वास मानिए। अगर आपको लगेगा कि वीडियो सर लंबा हो गया, वैसे भी 30-40 मिनट तो कर सकते हैं चीज़ों को, तो फिर आप बाद में देख लीजिए, 2x स्पीड पर लगा दीजिए। लेकिन इसको मैं ऐसे ही ज़ाया नहीं करूँगा, क्योंकि यूपीएससी का मैं जानता हूँ कोर है, हार्ट है यहाँ पर। ठीक है, बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। चलिए, सो व्हेन यू टॉक अबाउट प्लेन इंटरसेक्टिंग कोन, किस में? अभी हमने देखा था कि 2 जनरेटर्स मिलेंगे जब प्लेन कोन को इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन अब उसने हमें एक कंडीशन दे दी। What is the condition that these 2 generators intersect? क्या बोल रहा है? These 2 generators intersect like normally perpendicular condition है। So now we are interested in that। अब यहां पर भी डियर फेलोज जो कहानी स्टार्ट होगी, अच्छा पीछे वाले में जहां आप UL प्लस VM प्लस WL लिखते हैं, कुछ लोग उसको ऐसे भी बोल देते हैं, प्लेन कंटेनिंग द लाइन करके। सो डोंट कंफ्यूज इन दैट। ठीक है, मैथमेटिकली बी सॉलिड। एनीवेज, सपोज दैट वी हैव बीन गिवन अ प्लेन UX प्लस VY प्लस WZ इक्वल्स टू 0। Let's say this is a given plane. Let's say we have the equation of cone with vertex at origin. मैंने पहले ही कहा, without loss of generality, we are concerned over this particular form only. General form के questions अपने पास नहीं हैं. Still those can be tackled without loss of generality. ठीक है, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी का मतलब होता है कि द वे विच यू आर वर्किंग और इंप्लीमेंटिंग ओवर दिस, द सेम कैन बी रिफ्लेक्टेड ओवर अदर इंटरप्रिटेशंस एज वेल। फेयर? कोई दिक्कत? आगे बढ़े? चलो, अब यहां पर देखिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स की बात हो रही है, राइट? अब मैं यहां पर आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स में मैं जा सकता हूं, मैंने पहले ही बोला था, थोड़ा सा लेट से अगर आपके पास L1 M1 L1 और L2 M2 N2 DCs हैं ऑफ जनरेटर्स, कैसे मिलेंगे ये तो हम पीछे देख चुके हैं। देन L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 मस्ट बी 0, राइट और नॉट? अब ये जो कंडीशन है इसका करना कैसे है, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, भले ही 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन ये ब्यूटी आज मैं आपको फील करा दूंगा। वो जो tan थीटा वाला फॉर्मूला आपने रटा है ना या किसी ने A प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 रट रखा होता है कि नहीं है? अरे बोलो चलिए आते हैं यहां पर। तो ये चीज अपने पास है
और हम इंटरेस्टेड हैं अब फर्दर इंटरप्रिटेशन में। ठीक है, shall I proceed now? So from the previous story we are starting the kahani UL plus VM plus WN equals to 0, वही चीज, considering the line satisfying, सीधा ये वाला इक्वेशन उठा के लिखूंगा मैं सीधा। क्या क्या इक्वेशन है अपने पास? 4 and 5. So previously equations 4 and 5, okay? यहां पे है AL स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर प्लस 2FMN प्लस 2GNL प्लस 2GHLM equals to 0. That is the, let's say, equation number 2. Fair? अब देखिए हमारे बैक ऑफ द माइंड में क्या चल रहा है। हमारे बैक ऑफ द माइंड में चल रहा है कि ये हमें कंडीशन यूज करनी है, राइट? वी हैव टू यूज दिस कंडीशन। सॉरी, आई एम सॉरी प्लीज। चलिए देखिए ध्यान से यहां पर। अब वो जो चैप्टर 1 वाली कहानी बताई थी ना मैंने, DRS एंड DCs वाली, लेट्स ट्राई टू गेट L1 M1 N1 L2 M2 N2 by solving 1 and 2. So persons who have done that chapter, those questions well, they know, and who didn't, they should try. What I am doing here is I am just trying to give you a glimpse, because अपना जो गेम था वो प्लेन इंटरसेक्शन के साथ में, कोन के साथ में था, ना कि आपको DRS और DCs, उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट टॉक है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये हमें मैनेज करके चलना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, फिर इस पूरे कॉन्सेप्ट टॉक का मजा गड़बड़ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको हिंट करता हूं यहां पर करते क्या है, जो लीनियर रिलेशन होता है वहां से किसी एक का, ईदर L ईदर M और N का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल्स निकाल लेते हैं। ठीक है, यूज इन 2। फेयर? क्या मिल जाएगा? वी हैव A इंटू L स्क्वायर, तो वो तो एज इट इज है, AL स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर प्लस C इंटू N स्क्वायर। N का वैल्यू क्या है? UL प्लस VM प्लस W का होल स्क्वायर प्लस 2F M इंटू N का वैल्यू, तो ये माइनस के साथ आ जाएगा, माइनस साइन हियर, UL प्लस VM प्लस W इंटू MN है ना, सो M माइनस 2G NL, सो माइनस 2GL UL प्लस VM अपॉन W प्लस का 2HLM इक्वल्स टू 0। अब मैं आपको एक प्यारा सा हिंट करता हूं यहां पर कि बहुत ब्यूटीफुली देखना ध्यान से, अपने को बात करनी है L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल्स टू 0, इसको यूज करना है। तो L1 L2 M1 M2 टाइप का एक्सप्रेशन कैसे दिखे, तो वो जो बैक ऑफ द माइंड में चल रहा होता है वो आके यहां अपना रोल प्ले करता है। So if you go through the concept talk of DCs and DRS, there I have beautifully explained that. ठीक है, सो यहां से मैथमेटिकली देखिए, आई विल चेंज द कलर हियर, हम क्या करते हैं, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन LYM बना लेते हैं। देखिए ध्यान से,
इस इक्वेशन को मतलब एम स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, क्या लेते हैं, टेकिंग एम स्क्वायर एज कॉमन। अब कहेंगे सर आपको इतना स्टेप याद कैसे, आपने इतना रटा कैसे, तो रटा है ही नहीं। कॉन्सेप्चुअली एक लाइन इशारा करती है कि अगली तरफ जाना कहां पर है, और जिस दिन आप ये कनेक्ट करना सीख गए उसी दिन आपको मैथ्स ऑप्शनल डराएगा नहीं, आपको खौफ नहीं देगा मैथ्स ऑप्शनल, आप एंजॉय करेंगे इसको। गेटिंग माय? और वैसे भी मैथ्स जो लोग चूज करते हैं ऑब्वियसली दे आर स्मार्ट एनफ, है ना। चलो अब इसके बाद क्या होगा, यहां से लेट इफ L1 बाई M1, L बाई M में इक्वेशन है ना क्वाड्रेटिक, तो दो रूट देगा। लेट इफ L1 बाई M1 एंड L2 बाई M2 आर टू रूट्स। देखना कैसे डिकोड कर देते हैं चीजों को। अगर दो रूट हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो समेशन ऑफ रूट्स का एक फॉर्मूला माइनस का L बाई एम का कॉफिशिएंट अपॉन L बाई एम का स्क्वायर का कॉफिशिएंट, अदर फॉर्म में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। गेटिंग माय पॉइंट? हो गया। अब यहां पे आपको एक्सप्रेशंस मिल चुके हैं। यूजिंग दिस with the Lagrange's identity, or persons who are interested in all explanations here, they can ask for that, we can share the PDF with you, and obviously who know Pensar, they know कहाँ पे क्या चीजें हैं, they know how beautifully he has explained the things, right? Here we are talking about concept decoding. So अब क्या होगा प्यारे बच्चों, लैग्रांज आइडेंटिटी और इन एक्सप्रेशंस को मैनेज करने के बाद आपका जो टारगेट है वो यहां पहुंचने लगेगा, ठीक है। और जैसे ही इस कंडीशन में आप देखोगे म्यूचुअली परपेंडिकुलरिटी यूज करते हुए, फिर आपको चूंकि एंगल देखिए ध्यान से, प्लेन इंटरसेक्टिंग दिस, तो इस कंडीशन में पुट कर देंगे, आई एम सॉरी, यू विल गेट द रिक्वायर्ड लोकस और रिक्वायर्ड स्टफ वट एवर यू हैव डिजायर्ड फ्रॉम देयर, कि व्हाट शुड बी द कंडीशन ओवर दैट। डिड यू गेट द पॉइंट? प्लीज से यस और नो। अब यहां पर मान लो म्यूचुअली परपेंडिकुलर की बात ना होती, ध्यान से देखिएगा, अब यार इतना इंटरेस्टिंग करते जा रहे हैं एक और चीज बता ही देते हैं। मान लो अगर आपको चाहिए होता एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू जनरेटर्स, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल है। तो चूंकि cos थीटा क्या होता है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, सो यहां से आप tan थीटा लिख सकते हैं इन दिस एक्सप्रेशन। भाई cos थीटा इक्वल्स टू आधार बटे कर्ण, वहां से लंब निकाल लीजिए और यहां से tan थीटा का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, और वो एक्सप्रेशन इस मैनेजमेंट से लेकर आइए यहां पर। आज आपने सब पढ़वा लिया। वो एक्सप्रेशन जो tan थीटा का है, अब जाके कोई भी यूनिवर्सिटी लेवल की किताब देख लेना जाके, आज मजा ना आ जाए तो बताना, यू विल फील दिस कि सर आज क्या डिकोड करके चले गए। आर यू गेटिंग द पॉइंट एवरीवन? एकदम पूरा विश्वास के साथ, पूरा आनंद के साथ कहिए। तो अगर कंडीशन चाहिए हो तो कंडीशन के हिसाब से यहां से मूव कर जाइए। अगर आपको एंगल ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए तो अब आप कहेंगे कि सर आपने यहां cos थीटा क्यों नहीं निकाला, tan थीटा ही क्यों निकाला? क्योंकि cos थीटा का ये एक्सप्रेशन यूज करते हुए जो tan थीटा का एक्सप्रेशन बनेगा, उस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू यहां से आसानी से दिख रही होगी लैग्रांज आइडेंटिटी को यूज करके इन टर्म्स के मैनेजमेंट में। और यहां कैपिटल ABC, कैपिटल FGH नोटेशंस आने लगते हैं।
सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मोर, देखो पहली बात तो ये है कि वो जो tan थीटा वाला फॉर्मूला है वो कुछ लोग क्या जिनको भी करना है वो याद कर लेते हैं, उसमें तो कोई तनाव है ही नहीं। बहुत सारे लोग इस चीज में इंटरेस्टेड रहते हैं कि सर वो जो tan थीटा का फॉर्मूला है क्यों ना एक कॉन्सेप्ट डिकोडिंग उस पर कर दिया जाए। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, डू लेट मी नो, आई विल डू दैट फॉर यू। अब फॉर द टाइम बीइंग अगर आपके पास tan थीटा का फॉर्मूला है तो उसके डिनोमिनेटर में आता है a प्लस बी प्लस सी। फॉर्मूला लिखें क्या? चलो लिख ही देते हैं, लेट्स राइट दैट। सो tan थीटा का फॉर्मूला यू गॉट हियर एज tan थीटा, ओके फेयर। सो एंगल बिटवीन tan थीटा दैट इज गिवन बाई 2p स्क्वायर। बहुत सारे नोटेशंस यूज होते हैं इसलिए मैं यहां लिखने से बच रहा था, फिर भी चूंकि हमें कुछ इंटरप्रेट करना है इसलिए वहां पहुंचना भी जरूरी है, राइट? फाई ऑफ UVW अभी बता रहा हूं। फाई ऑफ UVW क्या है? कहां गया ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसको मान लो फाई ऑफ x बाई जेड। सो x बाई जेड को UVW से रिप्लेस कर दो कि UVW क्या है? दीज आर द UVW। फेयर। अब P का भी एक्सप्रेशन का अपना होता है, वो फॉर्म अगर आपको इंटरेस्टेड है उसमें तो आप उसमें जा सकते हैं। अगेन दैट विल टेक 15 मिनट्स मोर, तो फिर ये वीडियो का लेंथ बढ़ेगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, डू लेट मी नो, यू कैन गेट दैट फॉर श्योर। ठीक है? सो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने के लिए कंडीशन क्या है वो भी अपने को इस फॉर्मूले से मिल जाती है। उसके लिए क्या होगा? थीटा इज 90, सो tan 90 इज 1/0। दिस इंप्लाइज a plus b plus c must be 0. And why I have written this formula, why I was so much fascinated about that I'm gonna tell you now. बहुत मजेदार है, बहुत ही मजेदार, आई एम सेइंग। ठीक है? देखिए प्यारे बच्चों, व्हेन यू टॉक अबाउट दिस एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, कि अगर जो जनरेटर्स हैं, जनरेटर्स, दो जनरेटर मिले थे ना, सो जनरेटर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन कंडीशन इज दिस। अब इससे इंटरप्रेट क्या कर सकते हैं? ये बहुत ब्यूटीफुल है, वेरी ब्यूटीफुल, आई एम सेइंग। इसीलिए मैं उस एक्सप्लेनेशन में आपसे पूछा कि आप मुझसे पूछ लीजिए बाद में, अगर आपको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए होगा tan थीटा का, आई विल डेफिनेटली गिव, क्योंकि ये इंटरप्रिटेशन इतना ब्यूटीफुली है। अगर ये नहीं दूंगा तो इस कॉन्सेप्ट टॉक का मजा चला जाएगा फिर। ठीक, चलिए देखिए ध्यान से। हमारे पास क्या था? कोण था फाई ऑफ x बाई जेड इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f बाई जेड प्लस 2z जेड एक्स प्लस 2hx बाई इक्वल्स टू 0, राइट? एक प्लेन था ux प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड इक्वल्स टू 0। ये प्लेन और कोण का इंटरसेक्शन हो रहा था। इंटरसेक्शन से हमें मिले परपेंडिकुलर जनरेटर्स, और परपेंडिकुलर जनरेटर्स की कंडीशन ये है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए तो जनरेटर्स जो होंगे वो होंगे परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स। इफ यू ऑब्जर्व वेरी क्लोजली हियर, कंडीशन डज नॉट डिपेंड, ध्यान से देखिए, एबीसी कहां है? वो तो इसके है ना, कोण के। डज नॉट डिपेंड ऑन UVW, मीन्स वी कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स ऑफ सच म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स, म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स। से यस और नो, क्योंकि UVW पर तो वो डिपेंड ही नहीं कर रही है कंडीशन। आपने मुझे कोण दे दिया, ध्यान से देखिए, आपने मुझे क्या दे दिया? कोण दे दिया ना।
अब UVW कुछ भी बना रहे, सपोज दैट आपने प्लेन दे दिया 2x + 3y + 5z = 0, ये UVW का वैल्यू, तो उसको यहां पे यूज करके अपने को एक tan थीटा मिल जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? अब वो जो जनरेटर्स मिल रहे हैं उनके बीच 90 डिग्री टेंजेंट है। अब मैंने UVW बदल दिया, फिर मुझे दूसरे जनरेटर्स मिल जाएंगे दो, वो भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने जो कोन का इक्वेशन लिया है उसके लिए मैंने a + b + c = 0 एस्योर किया हुआ है। सो ए प्लेन कट्स द कोन इन जनरेटर्स. Those generators are mutually perpendicular. The condition is a + b + c = 0, where a, b, c are the coefficients here in the given cone. And this plane cuts the cone, or we will have such infinite number of sets of mutually perpendicular generators. Don't confuse in the words. I am not saying infinite number of perpendicular generators. No, I am saying suppose G1 and G2 are mutually perpendicular, then G3 and G4, G5 and G6, other sets of those mutually perpendicular generators you can have here. If you are interested in getting the angle between generators what? Which the plane gives on the intersection with the cone, then you can get this formula. Here capital P is what? If you are interested I can write that, but otherwise उसके लिए फॉर्मूला आपके पास पहले से ही होगा, आपको मेरी जरूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर लिखना चाहेंगे तो you can have that from the book as well. But here I was more interested in this story, not that formula. Is that clear to all? किसी को कोई डाउट है तो चिल्लाइए. So I have tried my best here to make you feel, क्या फील कराया मैंने कि प्लेन एंड कोन का गेम क्या है. So here we were not playing some ordinary game, we were trying to address the demand of both of these exams, right or not? So if you are liking if you have interest in such videos, don't forget to appreciate, don't forget to put your views, or don't forget to ask your questions as well. We will definitely come out with next lectures as depending on your asked questions. So it's enough from my side. Good luck.